Hello everyone. So today I'm going to take up a new topic of ICSE class 10 syllabus, that is Julius Caesar Act 3 Scene 1. But before that, don't forget to like, share and subscribe to this channel. So in this scene we'll see that Caesar approaches the capital and he observes that the Ides of March have come. Ides of March to aa gayi hain. But again, the soothsayer here again reminds him and he in fact points out that they are not over yet. Abhi khatam nahi hui hai. Aa to gayi hai but khatam nahi hui hai. Here we'll also see that Caesar refuses to read the Artemidorus's warning. Artemidorus जो उसको लेटर लिख के देता है उसको भी मना कर देता है, मैं नहीं पढ़ूंगा. Cassius has a moment of panic and he fears that the plot has been discovered. कहीं मेरा plot पता तो नहीं चल गया, कुछ ऐसे instances होते हैं, but Brutus reassures him कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, don't worry, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. We'll also see that the conspirators surround Caesar. सब लोग Caesar के आसपास आ जाते हैं and they are actually pretending. They do not want any appeal in front of Caesar, but they are just pretending to kneel and appeal. And Caesar is stabbed to death by all the conspirators. सब मिल के उसको stab करते हैं, जिसमें Casca was the first person to stab Caesar. And Brutus is the last to strike. And यहाँ पे हम देखेंगे that a betrayal of friendship is there which actually shocks Caesar. Et tu Brutus, ये Caesar बोलता भी है, you too Brutus. So the conspirators claim publicly that tyranny is dead. भाई forceful ruler, tyranny हमें अब खत्म हो गई, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. And Brutus invites them to bathe, invites all the conspirators to bathe their hands in Caesar's blood. And actually में हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो कैलिफोर्निया की ड्रीम थी वो कैसे रियलिटी में कन्वर्ट होती है. So again, this scene holds a very important role in the entire play. In this scene, आगे हम लोग एक चीज और देखेंगे that Antony, who has actually fled, he returns to the scene. And after being promised safety, he shakes hands with the murderers. वो सारे conspirators, सारे murderers से हाथ मिलाता है. Brutus tells him he will explain why he has killed Caesar. He will explain his motives at Caesar's funeral and where he will speak to the crowd. वो ये भी बताता है कि मैं crowd में बोलूँगा, मैं सबके सामने बोलूँगा. So Antony also requests to speak at the Caesar's funeral. Cassius advise करता है कि नहीं नहीं Brutus, don't allow him. ये गड़बड़ हो सकता है, इसको मत allow करो. But Brutus agree कर जाता है as long as Brutus speaks first. वो कहता है पहले मैं पल्पिट पे बोलूँगा फिर तुम लोग बोलना. And when left alone with Caesar's body, Antony weeps and speaks of revenge. उसकी inner feeling आती है कि मैं इन सबसे बदला लूँगा, मुझे माफ कर दो जो मैं इतना मीक और gentle हूँ इन बिचर्स के साथ. We hear that Caesar's great nephew Octavius was also coming to Rome. लेकिन एंटनी उसको भी वहां पे स्टॉप करवा देता है अपने सर्वेंट से कह के कि भैया अभी उसे कह दो कि यहाँ पे ना आए और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको बुला लेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्ले. एक्ट 3 सीन 1. Before the capital, Senate sitting above. So all those senators are kind of the ministers. ये जो MLA types होते हैं वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं. And a crowd of people in the street leading to the capital, among them Artemidorus and the soothsayer. So अभी ये लोग capital पहुँचे नहीं है, रास्ते में हैं. और रास्ते में इनको कौन कौन मिलता है? इनको मिलता है Artemidorus और soothsayer. Flourish enters Caesar, Brutus, Cassius, Casca, Decius, Metellus, Trebonius, Cinna, Antony, Lepidus, Publius, and others. So almost all the, most of them are the conspirators और कई simple senators भी हैं. Caesar, the Ides of March are come. So he's talking to the soothsayer. देखो कुछ नहीं हुआ मुझे. Ides of March, 15th of March आ गई है. Soothsayer, yes Caesar, but not gone. Yes Caesar, but still not finished. अभी खत्म नहीं हुई है. Artemidorus, hail Caesar, read this schedule. Hello Caesar, please read this paper. Please इस paper को पढ़ लो please. Decius, Trebonius that desire you to overread at your best leisure. This his humble suit. So Decius एक और लेटर देता है और कहता है Trebonius wishes कि आप अपने फ्री टाइम में प्लीज इसको पढ़ लें. प्लीज इस पेटिशन को, इस रिक्वेस्ट को अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में इसको प्लीज डू रीड इट.
Artemidorus, O Caesar, read mine first, for mine is a suit that touches Caesar nearer. O Caesar, please read my request first. मेरी जो सूट है वो प्लीज पहले आप पढ़ लीजिए, because this application is concerned about you. ये तुमसे रिगार्डिंग है, इसमें जो भी लिखा है वो तुम्हारे रिगार्डिंग है. So basically there was a warning कि Caesar please do not go to the capital. ये हम लोग ने पिछले सीन में पढ़ा हुआ है. So my request touches you more personally. So please read this petition first. पहले इस request को पढ़ लीजिए. Caesar, what touches us ourselves shall be last served. जो मुझे personally concern करता है उसको मैं last touch करूँगा, उसको मैं आखिरी में देखूँगा. So here we can say that Caesar is more. हम यहाँ पे कभी ये नहीं बोलेंगे कि Caesar was very self-centered. वो कह सकते हैं कि he was more concerned about his image. तो वो हमेशा ये शो करता था कि वो लोगों को बहुत प्यार करता है. तो वो यही बोल रहा है कि नहीं, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, जो चीज़ मुझे कंसर्न करती है मैं वो आखिरी में पढ़ूंगा. सबसे पहले मुझे मेरे लोगों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. Artemidorus, delay not Caesar, read it instantly. Please do not delay Caesar, please read it. Caesar, what? Is the fellow mad? ये पागल आगल है क्या यार, क्यों परेशान कर रहा है? Publius, Sirrah, give place. हटो, get out of the way. क्या है? Sirrah means fellow, get out of the way. Cassius, what urged you petition in the street? Come to the capital. So Cassius is actually taking a lot of precaution. वो सबको मना कर रहा है, चलो यहाँ से हटो, तुम लोग जाओ. यहाँ पे क्यों तुम लोग खड़े हो कि अपने petitions दे रहे हो? कैपिटल पे आना, क्योंकि कैपिटल ही पे सब कुछ करना है. तो इसको डर भी लग रहा है कि कहीं कोई हिंट ना मिल जाए या कुछ हो जाए. तो ही इज जस्ट आस्किंग, कम टू द कैपिटल. हाँ, यहाँ पे why are you giving all your petitions on the street? Caesar goes up to the Senate house, the rest following. Finally ये लोग Senate house पहुंच जाते हैं, बाकी सब इनको फॉलो करते हैं. Popilius, I wish your enterprise today may thrive. Thrive means be successful. So यहाँ पे Popilius, he is not a conspirator. Suddenly वो आता है और वो कहता है कि I wish तुम जो भी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे हो उसमें तुम सक्सेसफुल हो. अब यहाँ पे शेक्सपियर ने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है दैट whether Popilius actually knows about this execution of Julius Caesar, या वो कोई एक छोटा सा माइनर सा प्लान के बारे में बात कर रहा है, जो पहले की बात है. लेकिन जो भी है वो ऐसे बोलता है कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर, मतलब कैशियस जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हे भगवान, लग रहा है इसको हमारे प्लान के बारे में पता है. एक्चुअली में देखो, प्लान तो लीक हो गया था, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि आर्टेमिडोरस को पता चल गया था. तो हो सकता हो पॉपुलियस, लेकिन वो इतना कैजुअली बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट सीजर्स असैसिनेशन और समथिंग एल्स. I wish your enterprise today may thrive. I wish that your plan may be successful today. Cassius, what enterprise? Popilius, कैसा enterprise Popilius? अब Cassius की सिट्टी पिट्टी गोल है, हे भगवान, क्या कैसा enterprise? Popilius, fare you well, bye bye करके वो निकल जाता है. And he advances to Caesar, तुरंत Caesar की तरफ जाता है. Brutus, what did Popilius Lena? What did Popilius Lena से क्या बोला है उसने? Cassius, he wished today our enterprise may thrive. हे भगवान, वो कह रहा था कि आज हम अपने जो भी प्लान्स हैं उसमें सक्सेसफुल रहें. I fear our purpose is discovered. I am really scared कहीं हमारा प्लान डिस्कवर ना हो गया हो, कहीं किसी को पता ना चल गया हो. Brutus, look how he makes to Caesar. Mark him, just watch him. हाँ, उसके expressions watch करो, कैसे Caesar से बात कर रहा है, पता चल जाएगा Caesar गुस्सा करेगा, क्या करेगा. तो just watch him. हाँ. Cassius, Casca, be sudden, for we fear prevention. Casca, be quick. जल्दी से stab करना, because Casca was the first person to stab Caesar. So Casca, be quick, because we fear that people may prevent us. कहीं ऐसा ना हो कि Caesar को ये बात पता चल जाए और हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही ना कर पाएं, हम लोग को पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाए. Brutus, what shall be done? Oh my God. Brutus, अब क्या होगा? If this be known, Cassius or Caesar never shall turn back, for I will slay myself. See, अगर ये बात कहीं से लीक हुई, अगर ये प्लान पता चल गया, so either Cassius will go back home or Caesar will go back home, because I shall never be able to face Caesar again. एक ही बंदा घर जाएगा क्योंकि दूसरा तो मर ही जाएगा. दैट मीन्स आई विल किल माई सेल्फ. आई विल नेवर गो बैक होम. मैं ये चीज़ फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये देख नहीं पाऊंगा. ब्रूटस, कैसियस, बी कंटेंट. कैसियस, रिलैक्स, बी काम, हड़बड़ाओ नहीं. Popilius Lena speaks not of our purposes. देखो, he is not talking about our plan. हमारे प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा है. देखो तुम जरा.
For look, he smiles and Caesar does not change. See, he is smiling and Caesar's expressions are not of anger. वो गुस्से में या सरप्राइज में नहीं है. Caesar बिल्कुल कांस्टेंट है, उसके फेस पे कोई चेंजेस नहीं आए. तो मतलब he is not talking about a plan. Cassius. Trebonius knows his time, for look you, Brutus, he draws Mark Antony out of the way. तो बेसिकली आउट ऑफ द वे यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि प्रॉबेबली ट्रिबोनियस वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मार्क एंटनी को यहाँ से लेके जाना व्हेन दे आर स्टैबिंग सीजर. व्हाई? बिकॉज उस समय ही वो कुछ ना कुछ रिवोल्ट कर देता है, इससे अच्छा उसको वहाँ से हटा दो. तो कैसियस इज पॉइंटिंग आउट, देखो ट्रिबोनियस को अपना टाइम पता है, देखो कैसे वो मार्क एंटनी को आउट ऑफ द वे लेके जा रहा है. एक्सुएंट एंटनी एंड ट्रिबोनियस दोनों लोग चले जाते हैं. डिशियस, वेयर इज मेटलिस सिम्बर, लेट हिम गो. सो मेटलिस सिम्बर वॉज अ पर्सन जिसको इन लोग ने मोटिवेट किया था कि जाके अपील करना, सीजर से अपील करना. वाई? बिकॉज सीजर उसमें इतना इनकॉर्पोरेट हो जाए, उस बातों में इतना उलझ जाए कि उसको स्टैब करना आसान हो. भाई अगर एकदम से कोई खड़ा है और आप स्टैब करो तो वो रिवोल्ट कर सकता है. वो बातें कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व है और पीछे से स्टैब कर दो तो कोई रिवोल्ट का इतना चांस नहीं होता है. So where is Metellus Cimber? So Metellus Cimber कहाँ है? Let him go. That means let him go and put his request, अपनी request, अपनी अपील, अपनी petition Caesar को दें. And presently prefer his suit to Caesar, and he should go and present his suit. Suit means request to Caesar. भाई Caesar was a great person. उसके पास जाते थे normal people और सब लोग जाके अपनी अपनी request देते थे. Brutus, he is addressed. Press never and second him. He is addressing. देखो वो बात कर रहा है. So पुश क्लोज, पास में जाओ, उसके पास में जाओ, सब लोग उसको घेरो, जाके सपोर्ट करो उसको. सिना, कैस्का, यू आर द फर्स्ट दैट रेयर्स योर हैंड. कैस्का, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रेज योर हैंड. तुम ऐसे पर्सन हो जो स्टैब करोगे. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब सीजर. सीजर, आर वी ऑल रेडी? What is now amiss? Amiss मतलब wrong. That Caesar and his Senate must redress. Redress means to rectify, to put something into right. So Are we all ready? अब बताओ क्या गड़बड़ है जो सीजर और उसकी सेनेट को सही करना है. ऐसी क्या प्रॉब्लम है सबको? Metellus, most high, most mighty, most puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat a humble heart. So again, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है. So वही वो बोल रहा है, high, most mighty, most puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat a humble heart. So I am actually putting my humble heart before you. You are the most powerful person. सबको अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है. So most powerful, all powerful person, before you I am throwing my humble heart. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. Caesar, I must prevent these Cimber. Oh, I must stop you, Cimber, from doing so. ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए. This is not good. I must interrupt you from doing so. ये मत करो. These crouching and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary men. So the way you are bending, ये जो crouch कर रहे हो, low bend कर रहे हो, ये सब जो courtesies कर रहे हो, मेरे आगे झुक रहे हो, ये सब ordinary people को affect ज़रूर करता है. उनके सामने तुम ये सब करोगे ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी. But मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता है. And turn preordinance and first degree into the law of children. And जो बहुत ही strict rules हैं उनको भी वो law of children, जैसे children होते हैं, आज तुम मेरे कमरे में मत आना, तुमने मेरी चॉकलेट खाई है, और 10 मिनट बाद साथ में खेल रहे होते हैं. तो यहाँ पे law of children ये बोला है, the person who changes their decisions again and again. So I am not that kind of a person. मैं ऐसा person हूँ जो एक चीज़ पे stick करता हूँ. मैंने जो decide किया वो for sure वाला है. मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि आज हाँ और कल ना, नहीं. So and turn the preordinance and first degree into the law of children, and turn these strict rules and regulation into the law of children. I am not that kind of a man जो मैं strict laws को, rules को अपने हिसाब से change कर दूँ. मैं ऐसा person नहीं हूँ. मैं बिल्कुल ये सब नहीं करता हूँ. समझे तुम? Be not fond to think that Caesar bears such rebel blood that will thwart from the true quality with that which melts fool. Again, very important. So don't be foolish to think कि बेसिकली क्या होता है, फ्लैटरी से लोग बहुत इजीली कोई भी चीज़ को इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं. सो आई एम डू नॉट बी फूल इनफ टू थिंक दैट माई, यहाँ पे ये जो बोला गया है, सच रेबल ब्लड, unstable nature. Rebel blood means unstable nature. Do not think that I am of such an unstable nature that will be thwarted, that can be changed. Thwart means swayed, easily melt कर देना, easily change कर देना. मेरा nature ऐसा नहीं है कि मैं easily change हो जाऊँ तुम्हारी हल्की फुल्की flattery से.
from the true quality with that which melted fools. Foolish people are affected by flattery, but not a person like me. मैं flattery से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, and do not think that I shall ever be affected by flattery. I mean sweet words, these flattering words. I am not at all affected by all these sweet words. Low crooked courtesies and base spaniel fawning. So spaniel is a dog. So ये एक ऐसा dog होता है जो बहुत ही ज़्यादा friendly, हर समय lick करता रहता है, bend करता रहता है. So if you do all these kind of things, ये जो dogs करते हैं, मेरे सामने bend कर रहे हैं, licking my foot, I am not going to be affected by that. मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये सब मेरे सामने मत करो. Thy brother by decree is banished. Decree means law. So your brother by law has been banished. उसको law के हिसाब से banish किया गया है. Banish का मतलब होता है देश से निकाल देना. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spur thee like a cur out of my way. So this shows Caesar's vanity. घमंड, pride यहाँ पे show कर रहे हैं. See, तुम्हारे ब्रदर को लॉ के हिसाब से बैनिश किया है, एंड इफ यू आर गोइंग टू बेंड डाउन बिफोर मी, इफ यू आर गोइंग टू बो बिफोर मी, देन व्हाट आई विल डू, आई विल किक यू लाइक अ डॉग आउट ऑफ माय वे. मैं कुत्ते की तरह तुम्हें हटा दूंगा अपने रास्ते से. सो प्लीज डोंट डू दैट. डोंट बेग कि मैं तुम्हारे भाई को वापस बुलाऊं. ऐसा नहीं हो सकता है. नो सीजर दैट नो रॉन्ग नॉर विदाउट कॉज विल बी सेटिस्फाइड. तुम्हें नहीं पता है? Just try to understand that Caesar never does any wrong. कभी मैं गलत कर नहीं सकता हूँ, और बिना किसी रीज़न के मैं सेटिस्फाई नहीं हूँगा. मैं बिना किसी रीज़न के उसको वापस भी नहीं बुलाऊँगा. क्यों मैं बुलाऊँ? मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है. Metellus, is there no voice more worthy than my own to sound more sweetly in Caesar's ear? Is there no other person whose voice is more influential than mine? कि Caesar शायद उसकी बात सुन ले. प्लीज़ कोई और बंदा है जो प्लीज़ मेरी मदद करे मेरे भाई को वापस लाने में. क्या ये एक्चुअली में अपने भाई को वापस लाना चाहता था? नहीं, ये सिर्फ सीजर को बातों में उलझाने के लिए ऐसा टॉपिक लिया था ताकि सीजर का दिमाग पूरा उस पर चला जाए, उसका फ्रस्ट्रेशन सारा उस पर चले जाए, एंड दीज पीपल कैन ईजिली स्टैब सीजर. सो for repealing of my banished brother, so that I can like कोई ऐसा पर्सन है जो कि रिकॉल कर सके मेरे बैनिश ब्रदर को, रीअपील कर सके सीजर से, ताकि मेरे बैनिश ब्रदर को वापस बुलाया जा सके. तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी वॉइस इज फार मोर अपीलिंग टू सीजर देन माई ओन. Brutus, I kiss thy hand but not in flattery, Caesar. I would like to kiss your hand, but मैं flattery नहीं कर रहा हूँ Caesar. Desiring that Publius Cimber may have an immediate freedom of repeal, I request you कि प्लीज़ उसको immediate freedom of return प्रोवाइड कर दे. सर, मैं आपका हाथ किस कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट इन फ्लैटरी. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप उसको वापस बुला लीजिए. सीजर, व्हाट? ब्रूटस, तुम भी इसके साथ हो? कैसियस, पार्डन सीजर. सीजर, पार्डन. सर माफ कर दीजिए सीजर. As low as to thy foot that Cassius fall, to beg enfranchisement of Publius Cimber. Sir, मैं आपके पैरों के जितने नीचे गिर रहा हूँ सर. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ Publius Cimber को फ्रीडम, एनफ्रेंचाइजमेंट मीन्स फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको वापस से बुला लिया पॉसिबल हो सर. Caesar, again a very important speech. Caesar, I could be well moved if I were as you. See, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ईजली कन्विंस हो जाता. इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी. सी, अगर मैं तुम्हारी तरह होता, इफ आई वर लाइक यू, तो मैं ईजिली कन्विंस हो जाता. देखो, अगर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूं, प्रे करूं, और फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ती, बट मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ. ना मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ना मैं उनकी रिक्वेस्ट सुनता हूँ. आई कुड एक्चुअली, मैं तुम लोग की तरह होता, लोगों के सामने गिड़गिड़ाता, रिक्वेस्ट करता, तो भाई मैं सुन लेता. लेकिन मैं तुम लोग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ. But I'm as constant as the northern star. But my decisions are as strict as just like the pole star. Pole star अपनी position कभी change नहीं करता. In the similar manner, मेरे जो decisions हैं वो मैं कभी change नहीं करता हूँ. जो मैंने decision ले लिया वो for sure वाला होता है. Of whose true fixed and resting quality there is no fellow in the firmament. There is, जैसे पोल स्टार जो है, नॉर्दर्न स्टार है, उसके तरह कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जो अपनी पोजीशन पे स्टे करे. इन द सिमिलर मैनर, जो मेरे डिसीजंस हैं, मैं अपने डिसीजंस पे स्टे करता हूँ जस्ट लाइक पोल स्टार. पूरे यूनिवर्स में मेरा जैसा कोई पर्सन नहीं है, कोई नहीं है एज फिक्स्ड एज द पोल स्टार. The skies are painted with unnumbered sparks. So there are
hundreds and hundreds unnumbered stars हैं skies में. They are all fire. सब एक जैसे हैं, सब fire हैं. And everyone that shine, और हर star shine भी करता है, but there's but one in all that whole hits place. लेकिन among them there is only one star that does not change its position. ऐसे innumerable humans हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई भी नहीं है. मैं जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं अपने decisions change नहीं करता हूँ. So in the world it is furnished well with men. So similarly जैसे stars innumerable हैं, वैसे ही humans भी innumerable हैं. बहुत humans यहाँ पे हैं. And men are flesh and blood and apprehensive. And all men are made up of flesh and blood. And apprehensive means here intelligent. सब सोचने समझने लायक हैं, सब सोचते हैं, सब समझते हैं. Yet in number I do not know but one that unassailable holds on to his rank. So but नंबर में इतने ह्यूमंस में सिर्फ एक ऐसा पर्सन को मैं जानता हूं जो कि अनशेकन है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते अपने डिसीजन से. एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन मी. मैं सिर्फ वो पर्सन हूं unshaken of his motion, and that I am he. Let me a little show it even in this. So let me show it even in this case also. In this case also you'll see that I am constant. मैं बिल्कुल constant हूँ. That I was constant, Simba should be banished, and constant do remain to keep him so. I was constant at that time also. मैं उस समय भी ये determined था that Simba should be banished, उसको देश से निकाल दिया जाए. और अभी भी मैं constant हूँ कि उसको इसी तरह से देश से निकाला ही रहना है, उसको वापस नहीं बुलाना है. Cinna, O Caesar, Caesar, hence will thou lift up Olympus? You might try to move Mount Olympus, but not me. तुम Mount Olympus को भी move कर सकते हो, but not me. You cannot dissuade me. मेरा mood change नहीं कर सकते, मेरे decisions change नहीं कर सकते. Decius, great Caesar, Caesar. That not Brutus, bootless kneel. Why are you kneeling here in vain? घुटनों के बल मत रहो. इसका कोई फायदा नहीं है. This is all futile. इससे कोई benefit नहीं होगा. Casca, speak hands for me, and Casca at this moment stabs Caesar. Speak hands for me, और वो stab कर देता है Caesar को. Casca stabs Caesar in the neck. He is then stabbed by several other conspirators. Casca is the first person to stab Caesar, and later on all the conspirators stab Caesar. And at last by Marcus Brutus. And last person to stab Caesar was Brutus, the person whom Caesar loved the most. सबसे ज़्यादा प्यार वो Caesar जो था वो Brutus से करता था. And last was Brutus. Caesar, et tu Brute, then falls Caesar. You too, Brutus. Then Caesar should fall. Why? Because he was disheartened. बाकी लोगों से तो उसको उम्मीद नहीं थी, but Brutus तो उसका angel था. And even Brutus stabs Caesar. तो Caesar कहता है, then I should fall. He dies. The senator and people retire in confusion. So there is all commotion. सब इधर उधर भागने लगते हैं. Senate, people, सब इधर उधर हड़बड़ा जाते हैं. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे 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 करके. Cinna. Liberty, freedom, tyranny is dead. So liberty, freedom, a forceful ruler is dead. Run hence proclaim. Cry it about the street. So run from here. Announce it in the street. Proclaim means announce. Run and shout in the street कि हम लोग को freedom मिल गई, हमें liberty मिल गई. Cassius. Some to the common pulpits. So बेटा actually में pulpits क्या होते थे? There used to be platforms. हर गली के एक area में एक platform होता था. So वही वो कह रहा है, कुछ लोग common pulpits पे जाइए and cry out liberty, freedom and enfranchisement. So now go to the common pulpits and cry, we have got freedom, हमें liberty मिल गई, हमें freedom मिल गया. जाओ सब जगह चीखो चिल्लाओ, हम लोग अब free हैं, हम आज़ाद हैं. Brutus. People and senators, be not affrighted. Fly not, stand still. Ambition debt is paid. So Brutus is actually addressing to the people, जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा confusion में हैं, बहुत ज़्यादा shocked हैं, उनसे कह रहे हैं people and senators, please don't be frightened. डरो नहीं. There is no need for you to get frightened. डरो नहीं आप लोग. Fly not, do not just move about here and there. शांत रहें, stand still, सब शांत रहें, सब
एक जगह शांति से खड़े रहे। Ambitious debt is paid. Caesar had paid his life for being ambitious. सीजर को इसलिए मारा है बिकॉज ही वॉज बींग एम्बिशियस, इसलिए सीजर को असैसिनेट किया गया है। कैस्का, गो टू द पल्पिट ब्रूटस, नाउ यू गो टू द पल्पिट, कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाओ ब्रूटस, डिशस एंड कैसियस टू, और कैसियस तुम भी जाओ। ब्रूटस, वेयर इज पब्लियस, पब्लियस कहाँ है? सिना, here, quite confounded with the mutiny. He is quite surprised with this kind of mutiny. इतना ज़्यादा chaos, confusion हो रहा है, वो surprised है, ये हो क्या रहा है? Metellus, stand fast together. हम लोग को ना सब लोग को साथ में खड़ा रहना चाहिए. I think we should all stand together. हम लोग साथ में रहे. Lest some friend of Caesar should chance. कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई friend of Caesar आ जाए और कुछ हम लोग के खिलाफ कर ले, तो I think we should stand together. Brutus, talk not of standing Publius, good cheer. There is no harm intended to your person, nor to no Roman else. So tell them Publius. So Brutus is telling Publius that don't be so shocked Publius. हमारा इंटेंशन किसी भी रोमन को या तुमको कहीं से भी हार्म करने का नहीं है। ये जो किया गया ये सिर्फ और सिर्फ सीजर के लिए था, बाकी all of you are safe. No one is going to be harmed. Cassius, and leave us Publius, lest that the people rushing on us should do your age some mischief. और तुम यहाँ से चले जाओ पब्लियस, वरना जो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं, हमसे पूछने आ रहे हैं, हमें अटैक करने आ रहे हैं, कहीं तुमको कोई हार्म ना कर दें, तो तुम यहाँ से चले ही जाओ। Brutus, do so and let no man abide this deed but we the doers. See, yes, तुम ऐसा करो and let no man should take the responsibility of this deed except we the persons who have actually done the deed. किसी और को इस deed की, इस murder की responsibility लेने की ज़रूरत नहीं है सिवाय हमारे जिसने ये deed किया है। Re-enter Trebonius. वापस आते हैं Trebonius. Cassius, where is Antony? Trebonius, fled to house amazed. He was shocked. वो तो अपने घर चला गया है, वो शॉक में है बिल्कुल। Men, wives, children stare, cry out and run as it were doomsday. See, doomsday is the end of the day. जिस दिन माना जाता है कि अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी. So people are so confused that they are running hither and thither, they are running here and there as if doomsday आ गया है. सब अपने अपने घर भाग रहे हैं, सब इधर उधर जा रहे हैं. Brutus, fates, we will know your pleasures. That we shall die, we know. It is but the time and drawing days out that men stand upon. So Brutus is actually saying that destiny, we shall know what you have proposed for us. क्या तुमने हमारे लिए किस्मत में रखा है, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये बात तो for sure है that we will die. Everyone has to die. We all know well, हमें सबको ये पता है कि हम सबको मरना ही मरना है. It is just the case of time. कब कौन मरता है ये तो बस किस्मत की बात है. And prolonging the days of death, men are concerned with. Cassius, why? He that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death. See, the person who dies early, जो बंदा मान लीजिए जिसको 40 साल में मरना है वो 20 साल में मर जाता है, तो वो 20 साल की लाइफ के जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, वो कट ऑफ कर देता है। तो एक तरह से उसको तो हम मुक्ति दे रहे हैं, उसके तो लाइफ अच्छी हो गई है क्योंकि हमने जल्दी मार दिया, तो उसको जो बाद में इतने ट्रबल्स, इतने कष्ट हैं, वो झेलने का मौका ही नहीं है। ब्रूटस, ग्रांट दैट देन इज डेथ अ बेनिफिट. अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें तो इस सच में डेथ इज अ बेनिफिट. देन अगर ये बात तो कैसियस तुम्हारी मान ली जाए तो डेथ तो एक तरह से बेनिफिट है. सो आर वी सीजर्स फ्रेंड. सो इन दैट केस हम तो सीजर के दोस्त हुए, हमने तो उसकी लाइफ कट शॉर्ट कर दी है और उसकी जो फ्यूचर में ट्रबल्स आने वाली हैं उससे उसको बचा लिया है. दैट हैव अब्रिज्ड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ. तो हमने शॉर्टन कर दिया उसका टाइम पीरियड टू फियर डेथ. डेथ से ही सब डरते हैं, हमने उसका टाइम शॉर्टन कर दिया है ताकि वो डेथ से डरे ही नहीं. Stoop, Romans, stoop, and let us bathe our hands in Caesar's blood up to the elbows and besmear our swords. See, here we can see the dream of Calpurnia coming true. कैसे Brutus is asking all the other conspirators कि सब लोग bend करो. Stoop means to bend. Stoop, Romans, stoop. So bend, Romans, bend, and let us bathe our hands in Caesar's blood. So हम लोग को अपने हाथ सारे सीजर के ब्लड से स्मियर कर लेने चाहिए, पूरा कवर कर लेने चाहिए. Up to the elbows and besmear our swords. एल्बोज तक हम लोग को उसके ब्लड में अपना हाथ को
पूरा कवर कर लेना चाहिए, अपनी स्वर्ड्स को कवर कर लेना चाहिए. Then walk we forth even to the marketplace, and waving our red weapon over our head, let us all cry, पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी. सो हम लोग को ये सब करने के बाद वी शुड गो टू द मार्केट प्लेस, हाथ में ऊपर स्वॉर्ड लेके घुमाना चाहिए और वी शुड से पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी. हम लोग को पीस मिल गई, हम लोग को फ्रीडम मिल गई, हम लोग को लिबर्टी मिल गई है. Cassius, stoop then and wash. So bend down and wash your, wash का मतलब है all smear, पूरे में कवर कर लो अपने hands को. How many ages hence shall this a lofty scene be acted over in states unborn and accents yet unknown? हमने इतना अच्छा काम किया है कि फ्यूचर में लोग इस सीन को बार बार एक्ट करेंगे ऑन द स्टेजेस. फ्यूचर में द सीन विल बी एक्टेड over and over again, बार इसको किया जाएगा in countries which are yet not born and in accents means languages which are yet not spoken. फ्यूचर में पता नहीं कितने सालों तक इस चीज को वापस से बार किया जाएगा. Brutus, how many times shall Caesar bleed in sport? Then I don't know how many times Caesar shall have to bleed. कितनी बार Caesar को bleed करना पड़ेगा on stage? God knows how many times. That now on Pompey's bases lies along. Look at him, how he is lying at the base of Pompey's statue. See irony क्या है, इसने पोम्पे के सन को मारा और आज ये खुद पोम्पे के स्टैचू के नीचे ही अपना दम तोड़ा है. So now he is lying at the base of Pompey's statue. Now worthier than the dust. He is not more worthier than the dust. Dust से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है. देखो Cassius, so oft as that shall be. Often that happens, many a times that happens, so often that shall not of us be called the men that gave their country liberty. So this group of people, ये जो हमारे conspirators group है ना, these people in future will be referred as the people who fought for their country and who brought liberty to their country. जैसे हम लोग कहते हैं ना freedom fighters. तो फ्यूचर में हमारे ग्रुप को ना फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जाएगा. हमने अपनी कंट्री को सीजर जैसे एक डिक्टेटर से बचाया है. डिशेस, व्हाट शैल वी फॉर्थ? चले क्या? शैल वी गो? Cassius, A, every man away. Yes, every man should go. Brutus shall lead. Brutus, you move ahead. See, Cassius is playing a very good game. वो क्या कर रहा है कि ब्रूटस को आगे कर रहा है, क्योंकि ब्रूटस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है. एंड दिस वाज द रीजन वाई वो बार ब्रूटस को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा था, अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश कर रहा था. सो नाउ वो ब्रूटस के पीछे छुप रहा है, ब्रूटस की इमेज के पीछे छुप रहा है. ब्रूटस शैल लीड. ब्रूटस, आप हम लोग के आगे चलिएगा. एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम. एंड वी शैल फॉलो इन अ वेरी डिग्निफाइड वे. हम ब्रूटस को फॉलो करेंगे डिग्निफाइड वे में. इन द बोल्डेस्ट एंड अमंग द बेस्ट पीपल ऑफ रोम. हम लोग बेस्ट पीपल ऑफ रोम, हमने रोम को लिबर्टी दिलाई है, तो हम ब्रूटस को फॉलो करेंगे. ब्रूटस, सॉफ्ट, हु कम्स हियर? कोई आता है. तो ब्रूटस कहता है एक मिनट चलने से पहले देखो कोई आ रहा है. एंटर अ सर्वेंट. एक सर्वेंट आता है. अ फ्रेंड ऑफ एंटनी. तो ब्रूटस कह रहा है अरे ये तो एक फ्रेंड है एंटनी का. सर्वेंट, thus Brutus, did my master bid me kneel? So in this way Brutus, my master Antony asked me to kneel before you. आपके सामने घुटने टेक के बैठने को बोला था मेरे मास्टर ने, that means Antony ने. Thus did Mark Antony bid me fall down, and in this way he asked me to fall down before you. आपके सामने दंडवत प्रणाम मैं कर रहा हूँ. And being prostrate, thus he bade me say. और इस पोजीशन में रहने के बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपसे ये बोलूँ. क्या? Brutus is noble, wise, valiant and honest. Brutus noble है, he is very wise, he is valiant, valiant means brave, and he is honest. Caesar was mighty, bold, royal and loving. Caesar was also very powerful, he was bold, he was royal and he was loving. I say I love Brutus and I honor him. So Antony loves Brutus. Antony कह रहा है कि Antony Brutus को love करता है और उसको honor करता है. Say I feared Caesar, honored him and loved him. And he feared Caesar. देखो वो बहुत ही selective words use कर रहा है Antony. Antony is a very clever man. And this was the reason why Cassius was scared of Antony. तो अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो मैं ब्रूटस से तो प्यार करता हूँ, ब्रूटस को ऑनर करता हूँ. सीजर से मैं डरता था, लेकिन हाँ उसको भी मैं ऑनर करता था, मैं प्यार करता था.
If Brutus will vouchsafe that Antony may safely come to him and be resolved how Caesar had deserved to lie in dirt. So basically, he is requesting, वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर रहा है. और रोमन्स दे वर मैन ऑफ वर्ड्स. मैंने पहले भी बताया रोमन्स इस तरह के थे, अगर एक बार बोल दिया तो फिर वो नहीं हो सकता है या वो होना ही होना है. तो यहाँ पे एंटनी इज एक्चुअली डिमांडिंग कि ब्रूटस से मुझे वर्ड्स चाहिए कि मुझे कोई हार्म नहीं होगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ सीजर डिजर्व्ड डेथ. सो व्हाट इज ही सेइंग? If Brutus will vouchsafe means grant. So if Brutus will grant that Antony may safely come to him, कि अगर Brutus ये allow कर दे कि Antony को hurt नहीं होगा, वो safely आके उससे मिल सकता है, and be resolved how Caesar deserved to lie in death. और मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे दैट हाउ सीजर डिजर्व्ड टू लाई इन डेथ. कैसे सीजर डिजर्व करता था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ सीजर. क्यों मारा उसको, क्यों वो डिजर्व करता था डेथ में लाई करना. Mark Antony shall not love Caesar dead so well as Brutus living. So Mark Antony shall not lie. देखो, I shall be more faithful to a living person than a dead person. तो अगर मुझे सही रीजन दिया कि कैसे ब्रूटस ने सीजर को मारा, क्यों सीजर को मारा, कैसे सीजर डिजर्व करता था डेथ में लाई करना, तो बिलीव मी आई विल बी मोर फेथफुल टू लिविंग ब्रूटस दैन डेड सीजर. मैं डेड सीजर से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बस रीजन दे दो कि किस तरह से सीजर डिजर्व करता था डेथ. But will follow the fortunes and affairs of noble Brutus, thorough the hazards of this untrod state with all true faith. So say my master Antony. In fact, अगर मुझे ये reasons मिल गए, then he shall follow the fortunes, मतलब Antony shall follow the fortunes and actions of noble Brutus. जो भी noble Brutus कहेगा, जो भी वो decide करेगा, वो सब कुछ करेगा Antony. Although this path is full of dangers, even then Antony is ready to follow that path if Brutus gives him the valid reason, and Antony would follow this dangerous path without any problem if Brutus gives him the valid reason that how Caesar deserved death. So this was the message which was sent by Antony by a servant. So say my master Antony. So this is the exact words which are quoted by Antony, और servant अपनी सारी बात बता के कहता है कि ये मेरे master ने बोला है. Brutus, thy master is a wise and valiant Roman. So your master is a very wise and a very brave Roman. I never thought him wrong. I never thought him less than that. मैंने कभी उसके बारे में इससे कम सोचा ही नहीं है. मैंने हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचा है. Brutus कहते हैं. Tell him, so please him, come onto this place. He shall be satisfied, and by my honor depart untouched. So I am taking a vow of my honor. मैं अपनी honor की कसम खाता हूँ कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और वो बिना हार्म हुए यहाँ से जा सकते हैं. कोई उनको हार्म नहीं करेगा, कोई उनको टच भी नहीं करेगा. Servant, I shall fetch him presently. बस मैं गया और उनको लेके आया. Brutus, I know that we shall have him well to friend. I wish काश उसको हम अपने friends में consider कर सकते. काश हम उसको एंटनी को अपने friends के part में consider कर सकते. Cassius, I wish we may. I also wish that काश एंटनी हमारे part में हो जाए तो कोई problem ही ना रहे. But yet I have a mind that fears him much. See, Cassius is a very good ऑब्जर्वर. उसको पता है, वो बहुत फार साइटेड है, उसको पता है कि एंटनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस है. तो वो बार बार क्या बोल रहा है, बट येट आई हैव अ माइंड दैट फियर्स हिम मच. पता नहीं क्यों मेरे अंदर इंट्यूशन, एक माइंड है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एंटनी से. एंड माई मिसगिविंग स्टिल falls shrewdly to the purpose, and my fears usually generally क्या होता है, जो मेरे fears होते हैं ना, वो generally सच्चाई को hit करते हैं. मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं ये बात भी सच ना निकल जाए, कहीं हमें जो डर है मुझे एंटनी से, कहीं वो डर जो है वो सच में ना साबित हो जाए. Brutus, but here comes Antony. See, Antony आ गए हैं. Re-enter Antony. Welcome Mark Antony. So Brutus is actually welcome Mark Antony. लेकिन जैसे ही एंटनी एंटर करता है, वो सीजर की डेड बॉडी देखता है और वो शैटर हो जाता है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु एडमायर्ड सीजर, हु लव्ड सीजर, हु ऑनर्ड सीजर. और वो जैसे ही सीजर की डेड बॉडी देखता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में टाइप्स चला जाता है. तो क्या बोलता है, लेट्स सी. एंटनी, ओ माइटी सीजर, दस दाई लाई सोलो. ओ माइटी सीजर, डू यू लाई सोलो? तुम इतना जमीन पे पड़े हो, तुम ऐसे नीचे पड़े हो. यू वर सो पावरफुल, यू वर सो ग्रेट. आज तुम नीचे पड़े हुए हो.
are all the conquest, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measures? तुमने इतना ज्यादा जो कॉन्क्वेस्ट किए थे, इतनी ग्लोरीज की थी, इतनी विक्ट्रीज पाई थी, इतने प्लंडर्स किए थे, क्या ये सब कुछ रिड्यूस हो गया इस छोटी सी जगह के लिए? क्योंकि हम लोग कहते नहीं है 2.5 गज जमीन में ही हम लोग चले जाते हैं, नॉट मोर देन दैट। आप कितना भी लाइफ में कमा लो, मिलना हमें सिर्फ वो 2.5 गज जमीन ही रहती है। सो वही वो कह रहा है कि तुमने इतना कुछ किया, इतना प्लंडर्स किए, इतना कुछ स्टेट के लिए किया, और आज सिर्फ इतनी जमीन में ही तुम श्रिंक हो गए हो, बस इतनी ही जमीन तुम्हें मिली है। Fare thee well, goodbye, bye bye. I know not, gentlemen, what you intend. So he is now addressing all the conspirators who are standing in a group. So what is he saying? I do not know, gentlemen, what your intentions are. आपकी क्या intentions हैं मुझे नहीं पता. Who else must be led blood? Who else is rank? So बेटा लेड ब्लड एक पहले टेक्निक होती थी जब मेडिसिन इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो कोई भी एलिमेंट होता था, कोई भी बीमारी होती थी, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उस एरिया को कट करके उधर का खून बहा लेते थे। तो क्या होता था, माना जाता था कि वहाँ की इन्फेक्शंस क्लीन हो जाएंगे और इंसान बच जाता है। सो वही वो कह रहे हैं, who else must be led blood? Who else is rank? I do not know that who else is the next person जिसका खून बहाना पड़े। कौन ऐसा पर्सन है जो अब नेक्स्ट रैंक में? दैट मीन्स आप लोग के क्या इंटेंशन है, किसको नेक्स्ट मारना है मुझे नहीं पता। सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट अगर आप मुझे मारना चाह रहे हो, क्या मैं नेक्स्ट हूँ इस लाइन में आफ्टर सीजर? If I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour. See, he's such a clever man. उसने पहले तो ब्रूटस से वर्ड ले लिया कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और अब यहाँ पे इमोशनल गेम खेल रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर आप लोग का इंटेंशन है मुझे मारने का, देन दिस hour is the best hour to kill me. Why? Because this is Caesar's death hour. सीजर के साथ मरने से अच्छा कोई टाइम ही नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग की इंटेंशन है मुझे मारने का, तो आप मुझे अभी मार दो। Nor no instrument of half that worth as those your swords made rich with the most noble blood of all this world. See, no instrument, कोई ऐसा instrument नहीं है to kill me, to cause my death than your swords. Why? Because इन्हीं swords ने सीजर को मारा है, उसमें सीजर का ब्लड लगा है। तो अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो अभी मार दीजिए, इसी मोमेंट पे मार दीजिए, और इन्हीं वेपन से मारिए जिनसे आपने सीजर को मारा है। I do beseech, beseech मतलब request, ये मतलब you. If you bear me hard, if you have any hard feelings against me, bear me hard means if you have any kind of revenge against me, अगर आप मुझसे कुछ आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, मेरे लिए कोई hard feelings हैं, now whilst your purple hands do reek and smoke. So now while purple means red, आपने देखा होगा जब खून हाथ में लगा होता है तो थोड़ा सा डार्क रेड टाइप्स हो जाता है, तो उसी को वो बोल रहा है क्योंकि हाथों में तो सब खून स्मेयर्ड है। सो while your red hands are still steaming with दी स्मोक, क्योंकि जब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ब्लड लगा है तो वहाँ पे अभी भी हल्का हल्का स्मोक आ रहा है। स्मोक का मतलब हल्के से भाप सा उठ रहा है। फुलफिल योर प्लेजर, यू कैन कैरी आउट योर विशेज ऑफ किलिंग मी। अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मुझे अभी मार दो, अभी खत्म कर दो, बात यहीं पे खत्म कर दो। Live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. No place will please me so, no means of death, as here by Caesar and by you cut off the choice and master spirit of this age. See, if I live 1,000 years, अगर मैं 100,000 साल भी जिंदा रहा, तो I shall never find myself more proper time, more proper place or more proper instrument to die than die next to Caesar right now, जब उसका डेथ आ रहा है उसी समय, that too by those people जिसने सीजर को मारा है। एंड नाउ यू आर द ग्रेटेस्ट स्पिरिट्स ऑफ द टाइम। आप लोग तो सबसे पावरफुल हो इस समय, आपसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है। देखो ब्रूटस, कैसियस, बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स थे, लेकिन एंटनी अकेला था। उसको ये बात पता थी कि जब तक उसके पास सपोर्ट नहीं है वो इन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता, इनफैक्ट वो इनकी मर्जी पे है। तो वो अभी किसी तरह से वो एक मौका चाह रहा है कि वो एक मौका उसको मिल जाए ताकि वो अपनी बातों को प्रेजेंट कर सके और लोगों को अपनी तरफ कैप्चर कर सके। एंड फॉर दैट रीजन वो इन लोग के साथ इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ, इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग वे में बात कर रहा है। Brutus, oh Antony, beg not your death of us. Oh Antony, please do not ask for your death. हमसे डेथ के लिए भीख मत मांगो। देखो वो पहले ही सिक्योरिटी मांग चुका है। ब्रूटस अपनी जबान दे चुका है कि भैया तुम्हें हर्ट नहीं किया जाएगा, अब वो ये सब कर रहा है, राइट? Though now we must appear bloody and cruel as by our hands and this our present act you see we do, yet
see you but our hands, and this the bleeding business they have done. See, एट प्रेजेंट हमारे जो एक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल लग रहे होंगे, बिकॉज यू आर जस्ट सीइंग आवर हैंड्स. हमारे हैंड्स को देख के, क्योंकि वो ब्लड स्टेन्ड है, तुम लोग को लग रहा होगा कि हमने बहुत बुरा काम किया है, बिकॉज द डीड विच वी हैव डन वो हमारे हाथ से रिप्रेजेंट हो रहा है. बट एंड आवर हार्ट यू सी नॉट, बट तुम हमारा दिल नहीं देख रहे हो. हाथ से तो हम लोग बहुत क्रूअल लग रहे होंगे क्योंकि सब खून खून लगा हुआ है, स्टेन्ड है, बट यू आर नॉट सीइंग आवर हार्ट. हमारे दिल कैसे हैं, दे आर पिटीफुल. हमारे मोटिव्स कैसे हैं, हमारा दिल फुल ऑफ पिटी है. क्यों है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. The pity to the general wrong of Rome. So it is full of pity for the general public. General public के लिए देखो, ब्रूटस को तो यही सिखाया गया था कैसियस के थ्रू, हर तरह से इंटरप्रेट किया गया था कि रोमन पब्लिक जो है वो ये चाहती है कि सीजर को मार दिया जाए. तो वो वही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमारा दिल में पिटी भरी है फॉर द जनरल पीपल. जनरल पीपल वो अप्रेस्ड बाय सीजर एंड जस्ट फॉर देम ये एक्शन लिया गया है. As fire drives out fire, so is pity. So ये भी बहुत important है. जिस तरह से आग आग को काटता है, सिमिलरली पिटी फॉर रोम की वजह से हमें सीजर की तरफ जो पिटी थी उसको ख़त्म करना पड़ा. दैट मीन्स हम ज़्यादा पिटीफुल थे towards Rome, and this was the reason why we had to overlook the pity we had for Caesar. For your part, to you our swords have leaden points. As far as you are concerned, तुम्हारे लिए हमारे swords के pointed नोक नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे आगे से flat है. For you our swords are harmless. हम तुम्हें किसी भी तरह से harm नहीं करना चाहते हैं. Mark Antony, our arms in strength of malice and our hearts of brother's temper do receive you in with all kind love, good thoughts and reverence. देखो, our arms which are strong in their ill feelings for Caesar. देखो, Caesar के लिए तो हमारे arms में hatred था, but for our brothers हमारे हार्ट में फुल ऑफ ब्रदरली लव है. हम तुम लोगों के लिए हमारे हार्ट में ब्रदरली लव है. एंड वी वेलकम यू विथ ऑल गुड थॉट्स, गुड लव एंड रिस्पेक्ट इन टू आवर पार्ट. तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारी साइड में आ जाओ, हम तुम्हें बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं. Cassius, your voice shall be as strong as any man's in disposing of new dignities. Your opinion, देखो भाई, अब सीजर मर गया है, उसकी जगह सारी अब फिर से सब कुछ रीस्केड्यूल होगा, सारे को नए नए पोस्ट दिए जाएंगे. तो कैसियस के कह रहा है हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हें भी हम उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे नए डिग्निटीज देने में, नए पोजिशंस डिस्ट्रीब्यूट करने में. हमारी तरफ आ जाओ. ब्रूटस, only be patient till we have appeased the multitude. तब तक बिल्कुल शांत रहो, तब तक बिल्कुल पेशेंट रहो जब तक वी हैव नॉट प्लीज्ड द मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड मीन्स कॉमन पीपल. हमें बस उनको थोड़ा सा शांत करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. Besides themselves with fear, and then we will deliver you the cause why I that did love Caesar when I struck him have thus possessed. And then I shall give you a valid explanation. तब मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा से explanation दूंगा that the cause which made me a person who loved Caesar the most, why I actually killed him. Then I will give you the reason कि मैं जो कि Caesar से इतना प्यार करता था, मैंने क्यों उसको ऐसे assassinate किया. Antonio, I do not doubt your wisdom. I do not doubt your judgment. आपने जो भी judgment किया है, आपने जो भी intelligence अपनी use की है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है. Let each man render me his bloody hand. Let each man give me his bloody hand. सब लोग मुझे अपने blood stained hands हाथ आगे बढ़ाओ. First, Marcus. So these are all the conspirators. ये याद कर सकते हैं आप लोग. First, Marcus Brutus. I will shake with you. Marcus Brutus अपना हाथ बढ़ाएं. Next, Caius Cassius. I take your hand. So next, Caius Cassius, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा. Now Decius Brutus yours. Now Metellus. Now Cinna. And my valiant Casca yours. Why is he saying valiant? Because he was the first person to strike Caesar. Definitely Caesar को मारना आसान बात नहीं है, तो वो एक sarcastic way में. And my valiant Casca. अपना हाथ दो, सबसे मैं हाथ मिलाऊंगा. Thou last not least in love, yours good Trebonius. अब इसको ये भी समझ में आ गया कि Trebonius मुझे जानबूझ के ले गया है, तो तुमसे भी मैं हाथ मिलाता हूँ Trebonius. Gentlemen all, सब gentlemen सबसे मैं हाथ मिलाऊंगा. Alas, what shall I say? अरे यार, मैं हाथ तो मिला रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ. मेरी जो क्रेडिट है, मेरी जो रेपुटेशन है इस समय कितनी अजीब सी हो गई है.
My credit now stands on such slippery grounds. My reputation is on such a slippery ground. मेरी जो reputation है वो इतनी dilemmatic situation में मैं फंस गया हूँ. मुझे यही नहीं समझ में आ रहा मैं अपनी reputation कैसे बचाऊं. That one of the two bad ways you must conceit me. दो तरह से तो तुम मुझे कंसिडर करोगे, या तो तुम मुझे एक कावर्ड समझोगे या एक फ्लैटर्ड समझोगे. या तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैं डरपोक हूँ इसलिए मैंने तुम लोग से हाथ मिला लिया है, या तुम्हें लगेगा कि मैं नई डिग्निटीज में अपनी एक हाई पोजीशन चाहता हूँ इसलिए मैंने तुम लोग से हाथ मिला लिया है. That one of the two bad ways you must conceit me. Conceit मतलब consider me. Either a coward, coward means कायर, डरपोक, or a flatterer. Flatterer means sycophant, चापलूस. That I did love thee, Caesar. Oh, it is true. ये बात तो बिल्कुल सच है कि Caesar, I loved you. So now वो जब सीजर के सामने ही हाथ मिला रहा है तो उसका दिल जो है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है. So what is he saying? If then thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death? अगर सीजर आपकी स्पिरिट हमें अभी देख रही होगी तो जितना दर्द आपको डेथ के समय हुआ होगा उससे ज्यादा दर्द अब हो रहा होगा जब आप देखोगे कि आपका बिलवड एंटनी इज शेकिंग हैंड्स विथ योर मर्डरर्स. तो आपको कितना दुख लग रहा होगा. To see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy मतलब your and foes मतलब enemies, most noble. So when your spirit will see that Antony is shaking hands with your enemies, आपको कितना आपकी स्पिरिट को कितना दुख होगा. इनफैक्ट आपको डेथ से ज्यादा दुख अब फील होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कॉर्स, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ योर डेड बॉडी. तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी है उसी के सामने मैं हाथ मिला रहा हूँ. हे भगवान सीजर तुम्हें कितना ज्यादा दुख कितना ज्यादा दर्द होगा. Had I as many eyes as thou hast wounds, weeping as fast as this stream for thy blood, it would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. देखो वो कितना ज्यादा सही बात बोल रहा है. देखो वो इमोशनल भी हो रहा है, उसको बुरा भी लग रहा है, लेकिन बहुत क्लेवर गेम खेल रहा है. वो अपनी बात भी हल्की हल्की बोल दे रहा है लेकिन फिर से अपने आप को कंट्रोल कर ले रहा है. वो क्या बोल रहा है? आई थिंक जितने आपके वुंड्स हैं, जितने आपके घाव हैं, अगर मेरी उतनी आंखें होती और उसमें से खुद जितना आपका खून निकल रहा है उतना मेरे आंखों से आंसू निकलते तो शायद ये ज्यादा प्रॉपर होता रादर दैन शेकिंग हैंड्स विथ योर एनिमीज. ये बिल्कुल भी सही नहीं है. मुझे तुम्हारे एनिमीज के साथ हाथ नहीं शेक करना चाहिए था. इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी डेथ पे रोना चाहिए था. हाय मैं ये क्या कर रहा हूँ. Here was thou bait brave heart. So here you were bait मतलब brought to kill. यहाँ पे तुम्हें लाया गया था मारने के लिए. brave heart, heart यहाँ पे deer से कंपेयर किया. So Caesar को यहाँ पे deer से कंपेयर किया गया है. So brave heart here represents brave Caesar. So this was the point जहाँ पे तुमको लाया गया था. This was the point where you were planned to kill. Here this thou fall. So here is the place जहाँ पे तुम गिरे थे, जहाँ पे तुम्हें assassinate किया था, यहाँ पे तुम गिरे थे. And here thy hunters stand. So hunters are the conspirators. देखो यहाँ पे तुम्हारे hunters खड़े हुए हैं. Signed in thy spoil. So they are all, देखो उनके हाथ तो सब अभी भी रेड थे ना, जो खून से डिप किए हुए थे. So they still have the proof of murdering you. अभी भी उनके हाथों पे वो साइंस हटे नहीं हैं. अभी भी उन्होंने जो मर्डर किया है उसके साइंस उनके हाथों पे हैं. Crimson in the leaf. So crimson means red color. So leaf is life blood. So अभी भी मतलब पूरे तुम्हारे ऊपर से नीचे तक तुम्हें लाल कर दिया है, पूरा क्रिम्सन कर दिया है. उनके हाथों में सब खून लगा हुआ है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर यू वर किल्ड बाय दीज कॉन्स्पिरेटर्स. ओ वर्ल्ड thou was the forest to this heart. सो यहाँ पे भी पन यूज हुआ है. पन का मतलब होता है एक वर्ड के दो मीनिंग. सो हार्ट पे पन है. यहाँ पे हार्ट डियर के लिए भी है और हार्ट दिल वाले के लिए भी है. So there was a time when you were the heart of this world. जब तुम यहाँ पे थे ये forest तुम्हारा heart था. तो you were the deer of this forest also and you were the heart of the world also. And indeed, O world, the heart of thee, and you were the heart of the entire world also. How like a deer stricken by many princes dost thou lie here. So how like a deer you were killed by many princes, you are lying over here. हाय कैसे तुम यहाँ पे पड़े हुए हो, कैसे तुम यहाँ पे पड़े हो. जस्ट लाइक एक डियर को खूब सारे प्रिंसेस ने मिलके मार दिया हो, वैसे ही देखो तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई है. सो बेसिकली
he is overwhelmed to see the dead body of Caesar. अच्छा, कोई नॉर्मल डेथ मरता है तो उसमें इतना पेन नहीं होता है, उसकी बॉडी म्यूटिलेटेड थी, बुरी तरह से खून हर जगह से निकल रहा था। तो वही वो कह रहा है कि यार जितने तुम्हारे वुंड्स हैं, अगर मेरी उतनी आंखें होती, मुझे उतनी आंखों में से आंसू निकल रहे होते, शायद वो देख के तुम्हें ज्यादा सुकून मिलता, रादर दैन शेकिंग हैंड्स विथ योर मर्डरर्स। जब वो ये बोल रहा है तो कैसियस जो है वो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो जाता है कि यार ये क्या बोल रहे हो, मतलब हम हमारे ही सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो। Mark Antony, pardon me, guys, Cassius, I'm so sorry I'm saying all these things. The enemy of Caesar shall say this, then in a friend it is called modesty. Even the enemies will say such things. दुश्मन भी ये बोलेंगे, फिर मैं तो एक फ्रेंड हूँ, मैंने तो एक सिंपल कोल्ड मॉडरेट फॉर्म में बोल दिया है, माफ करना मुझे। Cassius, I blame you not for praising Caesar, so I do not blame you for praising Caesar. But what compact you mean you to have with us? So ये सब छोड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम सीजर को प्रेस कर रहे हो, बट हमें ये बताओ what kind of bargain do you want from us? हमसे क्या चाहते हो तुम? यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों आके हमसे क्या चाह रहे हो? What are your intentions? Will you be picked in the numbers of a friend or shall we on and not depend on you? Should we count you among our friends? क्या हमें तुम्हें अपने friends में count करना चाहिए या हम आगे बढ़ जाएं और तुम्हें consider ना करें? तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? Antony, therefore I took your hand, but indeed swayed from the point. अरे भाई मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स में ही अपने आप को शामिल करवाने आया हूँ, बट क्या बताऊँ, सीजर की डेड बॉडी देख के मैं डिस्वे हो गया था, मैं स्वे हो गया था फ्रॉम द पॉइंट by looking down on Caesar. I was just moved from my point by looking down on Caesar. Caesar की dead body देख के मैं थोड़ा सा dissuade हो गया था. Friends, I am with you all and love you all. भाई I am your friend and I love you all. Upon this hope that you shall give me some reasons why and wherein Caesar was dangerous. But I hope that you will definitely give me reason कि आपको किस तरह से लगता था कि Caesar dangerous है. Just you have to give me that. Brutus, or else were this a savage spectacles? अगर हम आपको रीजन नहीं देंगे तो then this scene would be a very very savage scene, बहुत ही वाइल्ड सीन होगा, जाहिर सी बात है। Our reasons are so full of good regards that were you Antony, the son of Caesar, you should be satisfied. लेकिन जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे पास जो रीजंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप सीजर के खुद बेटे भी होते ना तो शायद आप हमारी बात को मान जाते और आप हमारी बात से सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ सीजर एक्चुअली में डेंजरस था। तो तुम उससे बेफिक्र रहो, हमारे पास बहुत सॉलिड रीजंस हैं ये बताने के लिए कि कैसे सीजर डेंजरस था। एंटनी, दैट्स ऑल आई सीक, बस मुझे यही चाहिए। देखो एंटनी रिवेंज लेने आया है, उसको पता है उसको बदला लेना है, लेकिन वो बस एक मौके की तलाश है, उसको बस किसी तरह से सबके सामने अपनी बात को रखना है, उसको लोग गैदर करने, क्योंकि वो अभी अकेला है और अकेला इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता है। एंड आई एम मोर ओवर सूटर दैट आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस। बस मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, मैं उसकी बॉडी मार्केट प्लेस में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक्चुअली में होता क्या था, पहले जब कोई ग्रेट इंसान मरता था तो उसकी बॉडी ले जाते थे, उसके बिहाफ पे अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो वही वो बोल रहा है कि मैं उसकी बॉडी मार्केट प्लेस में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरी बस एक ये छोटी सी और रिक्वेस्ट है। And in the pulpit, as becomes a friend, speak in the order of his funeral. मार्केट प्लेस पे और पल्पिट पे ले जाके मैं कुछ स्पीचेस बोलना चाहता हूँ, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। जब किसी की डेथ होती है तो जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं, मैं उस तरह से बोलना चाहता हूँ। ब्रूटस, यू शैल मार्क एंटनी। सी अगेन ब्रूटस की सबसे बड़ी मिस्टेक, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है क्या कि उसने एंटनी को अलाउ कर दिया। कैसियस ये चीज पॉइंट आउट करता है कि नहीं ब्रूटस, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट राइट। कैसियस, ब्रूटस अ वर्ड विथ यू। ब्रूटस एक सेकंड, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। असाइड टू ब्रूटस, लेके जाता है कॉर्नर में। यू नो नॉट वॉट यू डू। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल। अरे ये चीज मत अग्री करो कि एंटनी उसके फ्यूनरल में बोले। यू नो यू हाउ मच पीपल में बी मूव्ड बाय दैट विच ही में अटर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हाउ मच इन्फ्लुएंशियल एंटनी स्पीचेस, तुम समझ नहीं सकते एंटनी कितना पावरफुल है अपनी स्पीचेस में, वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। उसको अलाउ मत करो, उसको कंसेंट मत दो कि वो मार्केट प्लेस में जाए और सीजर के फ्यूनरल पे बोले। ब्रूटस, बाय योर पार्डन आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट। नो नो प्लीज, मैं पहले पल्पिट में जाऊंगा एंड शो द रीजन ऑफ आवर सीजर्स डेथ। तो मैं साफ साफ बता दूंगा हमने सीजर को क्यों मारा। And what Antony shall speak, I will protest. He speaks by our leave and by our permission. जो भी एंटनी बोलेगा मैं पहले ही बता दूंगा कि वो हमारी परमिशन से बोल रहा है, और हम सबको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि सीजर को हमने क्यों मारा, कैसे मारा। उसके बाद एंटनी जाएगा, उसके बाद हम उसको और लोगों को हम इन्फॉर्म भी कर देंगे कि एंटनी को हमने परमिशन दी है ये सब बोलने की।
and that we are consented. Caesar shall have all the true rights and lawful ceremonies. और हम लोग ये भी satisfied रहेंगे कि सीजर के साथ सारी proper rights हुई हैं, सारे ceremonies हुए हैं, after that ceremony सब अच्छे से हुआ है, तो इसलिए नहीं यार ये allow कर देते हैं. It shall advantage more than do us wrong. ये देखो हमारे fruitful रहेगा, गलत कम करेगा, beneficial ज़्यादा रहेगा, लोगों को लगेगा हाँ देखो सीजर के friends को भी allow किया बोलने के लिए and all that. क्या आई नो नॉट वॉट मे फॉल, आई लाइक इट नॉट, पता नहीं क्या होगा बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम अलाउ कर रहे हो एंटनी को बोलने के लिए, क्योंकि एंटनी को बोलने देना सही नहीं है. ब्रूटस, मार्क एंटनी हियर, टेक यू सीजर्स बॉडी. मार्क एंटनी, ठीक है, यू टेक सीजर्स बॉडी. यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस. देखो बस एक चीज ध्यान रखना, अपनी फ्यूनरल स्पीच में हमें कहीं से ब्लेम मत करना. बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर. जितना तुम अच्छा बोल सकते हो सीजर के बारे में तुम वो बोलना, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना. एंड से यू डू इट बाय आवर परमिशन. और लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना कि हमने तुम्हें परमिशन दी है तब तुम ये सब बोल पा रहे हो. Else you shall not have any hint at all about his funeral. Otherwise you shall not have any part in the funeral. तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा वरना हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे. And you shall speak in the same pulpit whereto I am going after my speech is ended. और जब मेरी स्पीच खत्म हो जाएगी उसी पल्पिट में तुम बोलोगे जहां पे मैंने बोला है. एंटनी, बी इट सो, फाइन, ऑल राइट, आई डिजायर नो मोर. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. देखो एंटनी को ये बात पता है कि जो बाद में बोलता है ना उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, जो बाद में बोलेगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगा, लोगों के दिल में उसकी बात ज्यादा स्टे करेगी. तो ही इज एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड. ब्रूटस, प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस. ठीक है, तो बॉडी को प्रिपेयर करो और हमें फॉलो करो. एक्सवेंट ऑल एक्सेप्ट एंटनी. नाउ हियर ओनली एंटनी एंड सीजर्स बॉडी इज देयर. और कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं. ये जो है ये एक तरह से सॉलिलिकी है जिसमें एंटनी इज टॉकिंग टू द डेड बॉडी ऑफ सीजर. एंटनी, oh pardon me thou bleeding piece of earth. So here Antony is directly referring to the dead body of Caesar. He is saying please मुझे माफ कर दो, thou bleeding piece of earth. Why? Because सीजर की डेड बॉडी वहां पे ब्लीड कर रही थी, उसका खून बुरी तरह से बह रहा था, तो वही वो कह रहा है प्लीज माफ कर दो मुझे. किस लिए? दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स. दैट आई एम सॉफ्ट एंड जेंटल विद दीज बुचर्स. बुचर्स कौन होते हैं? कसाई, जो कि फ्लैश काटते हैं. सो आई एम रियली सॉरी दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स. ये लोग तो ये डिजर्व ही नहीं करते हैं. Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tides of time. Of all ages, इतने ages में तुमसे अच्छा noble man कभी यहाँ पे हुआ ही नहीं है. सीजर, तुम सबसे अच्छे इंसान रहे हो आज तक इतने noble men के बीच में. Vow to the hands that shed this costly blood. कर्स टू दोज हैंड्स जिन्होंने तुम्हारा इतना कॉस्टली ब्लड शेड किया. मे अ कर्स फॉल ऑन दोज हैंड्स जिसने तुम्हें स्टैब किया, जिसने तुम्हें इतने वुंड्स दिए. ओवर दाई वुंड्स आई नाउ डू आई प्रोफेसी. तुम्हारे वुंड्स के ऊपर मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ. मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूँ क्या? Which like dumb mouths do ope their rubby lips. See, जितने भी wounds होते हैं अगर आप चाकू मारो निकालो तो वो ऐसे नहीं लगता जैसे लिप्स की तरह ओपन हो गए हैं. So all your wounds which are open like lips, जो एक dumb lips की तरह open है, to beg the voice and utterance of my tongue, to beg the speeches from my tongue. मतलब क्या है, जो तुम्हारे wounds है ना उसमें हर wound में मैं अपनी जुबान लगाऊंगा, हर wound से मैं बदला लूंगा, मैं हर wound से यहाँ पे इतना ज्यादा त्राही त्राही मचा दूंगा. A curse shall light upon the limbs of men. I prophesy, मैं एक prophecy कर रहा हूँ that a curse shall fall upon the limbs of men. हर बंदे पे एक curse fall होगा. Domestic fury and fierce civil strife. Disturbance मैं कर दूंगा, domestic disturbance कर दूंगा, पूरे में civil war मैं कर दूंगा. Shall cumber in all parts of Italy. Shall cumber मतलब shall lie heavily on all parts of Italy. मैं हर जगह यहाँ पे क्या करूँगा? त्राही त्राही मचा दूंगा, सिविल वॉर कर दूंगा, डोमेस्टिक फरी कर दूंगा, हर जगह तमाशा कर दूंगा. Blood and destruction shall so be in use, and dreadful objects so familiar that mothers shall but smile when they behold their infants quartered with the hands of war. See, मैं blood, destruction इतना common कर दूंगा, इतना frequent, इतना normal कर दूंगा, dreadful objects इतना common कर दूंगा कि mothers will simply smile when they will hold the dead bodies of their children. Imagine एक mother और बच्चे का relation सबसे ज़्यादा प्यार वाला relation होता है.
लेकिन मैं इतना कॉमन डेथ कर दूंगा कि अगर मदर अपने बच्चे की डेड बॉडी भी लेंगी ना तो वो स्माइल करेंगी। दैट मीन्स उनके अंदर की सारी पिटी, उनके अंदर की सारी इमोशंस सब खत्म कर दूंगा। All pity shall die. Why? Because foul deeds will become very common. जो बुरी deeds है वो इतनी common हो जाएंगी कि लोगों के अंदर तरस, लोगों के अंदर pity सब खत्म हो जाएगा। And Caesar's spirit raging for revenge with 8 by his whole come hot from hell. So Caesar की spirit वहां से कहां से आएगी? With 8 god of revenge है। So Caesar's spirit will come with god of revenge from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry havoc and let slip the dogs of war. So Caesar की spirit along with 8 यहाँ पे आएगी in order to take revenge। अपने साथ जो 8 dogs रखते हैं, god of revenge अपने साथ जो कुत्ते रखते हैं उनको लेके आएगी और उनको कमांड देगा havoc, create कर दो destruction, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ destruction होगा। अब तुम देखना मैं कैसे इसका बदला लेता हूँ, हर जगह मैं destruction cause कर दूंगा। That this foul deed shall smell above the earth with carrion men groaning for burial. See, मैं इतना कॉमन कर दूंगा यहाँ पे डेथ, इतना कॉमन मैं डिस्ट्रक्शन कर दूंगा कि इवन द डेड बॉडीज विल क्राई कि प्लीज मुझे बरियल के लिए कोई जगह दे दो। डेथ विल बी सो कॉमन दैट द डेड बॉडीज विल रॉट, वो डीके करेंगी एंड दे विल एक्चुअली विश कि काश उनको कोई जगह मिल जाए फॉर बरियल। मैं इतना कॉमन डेथ और डिस्ट्रक्शन कर दूंगा। एंटर सर्वेंट, इसी मोमेंट पे एक सर्वेंट आता है। You serve Octavius Caesar, do you not? So Antony is able to recognize the servant. Antony पूछता है कि क्या तुम Octavius Caesar के servant हो? Octavius Caesar was the nephew of Caesar. Caesar के वो nephew थे, तो उनसे वही पूछ रहे हैं servant. I do, Mark Antony. Yes, Mark Antony. Antony. Caesar did write for him to come to Rome. Yes, Caesar had written to him कि वो रोम आ जाए। Servant, he did receive his letters. Yes, उन्होंने ये letters receive किए थे and is coming, and वो रास्ते में ही आ रहे हैं। And bid me say to you my word of mouth, O Caesar. और उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैं आपको ऑर्डर कर दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि वो आ रहे हैं। और सडनली वो सीजर की डेड बॉडी देखता है। ओ सीजर, seeing the body, Antony, thy heart is big, your heart is full of emotions. तुम्हें देख के दुख हुआ, मतलब तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा इमोशन से भरा है। Get thee apart and weep. Do not cry here. यहाँ पे मत रो, यहाँ पे मत रो, जाओ साइड में होके जाके रो। Passion I see is catching for mine eyes. जो पैशन है, जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंखों में, वो बहुत इन्फेक्शियस है, वो मुझे भी आ रहा है और मेरे आंखों में आंसू नहीं आने हैं, मुझे रोना नहीं है। Seeing those beads of sorrow stand in thine began to water. So मुझे भी, मेरे आंखों में भी तो आंसू आ रहे हैं तुमको देख के। ये फीलिंग्स जो है बहुत इन्फेक्शियस है। सो प्लीज ऐसा मत करो। आई डू नॉट वॉन्ट दैट माई आईज शुड बिगिन टू वाटर। तुम ये मत करो। इज दाई मास्टर कमिंग? तुम्हारे मास्टर आ रहे हैं क्या? सर्वेंट, he lies tonight within 7 leagues of Rome. Yes, आज रात में वो स्टे कर रहे हैं। 7 leagues मतलब almost 21 miles. So yes, 21 miles distance पे हैं वो रोम से और बस वो आ जाएंगे। एंटनी, पोस्ट बैक विद स्पीड, जाओ जल्दी से जाओ उनके पास। एंड टेल हिम व्हाट हैड चांस्ड, और टेल हिम कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सीजर को मार वार दिया गया, ये सब बताओ जाओ। Here is a morning Rome, a dangerous Rome. So this place, this Rome is not safe right now. ये एक dangerous Rome है। Morning, morning means crying Rome, जहाँ पे lamentation हो रहा है, ये सही नहीं है। No Rome for safety for Octavius yet. This is not a safe place for Octavius. जाओ Octavius को मना कर दो, यहाँ मत आए। Hey the hence and tell him so. जल्दी जाओ और ये बता दो। Yet stay a while, thou shalt not back till I have borne this corpse into the marketplace. So Antony was very confident. एक बार marketplace में जाने दो, फिर मैं इन लोग का लंका लगाता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई तुम तब तक यहाँ पे मत आना, ना उसको आने देना, थोड़ी देर वेट करो जब तक मैं ये डेड बॉडी को मार्केट प्लेस में ना लेके जाऊं। There shall I try in my oration how the people take the cruel issue of these bloody men. There I shall try in my speech how to convince the people कि कैसे इन bloody men के action को टेक करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। According to which thou shalt discourse to young Octavius of the state of things. Let me your hand. And then तुम उनको Octavius को बताना कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। पहले let me go to the marketplace, मैं लोगों को कन्विंस करता हूँ, देखता हूँ क्या उनका रिएक्शन है, तब Octavius को यहाँ पे लाना, तब बताना कि क्या क्या है। तब चलो मुझे मदद करो, गिव मी अ हैंड इन लिफ्टिंग द डेड बॉडी ऑफ सीजर। सीजर की डेड बॉडी को करो exhumed with Caesar's body, और सीजर की बॉडी लेके वो चले जाते हैं। I hope you like the scene. If you are able to understand the scene, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. I need your support, your love.
your affection in order to make more such videos. Thank you so much. Bye bye.